नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन अमेरिका जारी है और अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का हर जगह भव्य स्वागत हो रहा है। हर जगह उनके लिए दीवानगी देखी जा रही है। अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक सेंट्रल पार्क गए। यहां पॉप सिंगरों की मौजूदगी में उन्होंने एक पब्लिक कंसर्ट को संबोधित किया। दरअसल अमेरिका में पॉप सिंगरों के क्रेज को देखते हुए वहां के नेताओं का इस तरह के कॉन्सर्ट में पहुंचना और भाषण देना कोई नई बात तो नहीं है। नेताओं को पता होता है कि ऐसी जगहों पर बोलना जनता को अपील करता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री देश के ऐसे कंसर्ट में पहुंचे और वहां पे युवाओं को संबोधित करें, ये कोशिश अनूठी थी। युवाओं के मिजाज को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बसे भारतीयों और अमेरिकी लोगों को उन्हीं के अंदाज में अपनी बात कहने की कोशिश की। पॉप सिंगर्स की मौजूदगी में पीएम मोदी ने लोगों को भारतीय संस्कृति का सार बताया, जिसका मकसद है सब सुखी हो, सबका विकास हो। सेंट्रल पार्क में मौजूद मोदी ने युवाओं से अपील की कि बेहतर कल के लिए आज का बलिदान जरूरी है। How are you doing in New York? I hope you are having a good time. Namaste. My greetings to all those watching on TVs, laptops, tablets, and phones as well. This is a great city. It has assimilated the world in itself. Today, you have shown that you also care for the world outside. I'm truly delighted to be here in the open Central Park and not inside a closed conference room. Among the youth, because you are the future, what you do today will decide our tomorrow. Sometimes I used to say that if we will sacrifice our today, our tomorrow will be more beautiful. I feel a current of hope in this park among you. I feel confident about the future of the whole human being, and it is because of this crowd. You are touching the lives of those who are not of fortune as you are. What an admirable act this is. What a sacred mission for you to think about those who are far, whose faces you have not seen, whose names you do not know, whose nationality does not matter for you. For you to convert your thoughts into action and devote your time and energy so that others may have a better future to those living in poverty, without education, without basic sanitation, without opportunity, and worse, without hope. I salute you. I repeat, I salute you. I feel proud of each one of you. I'm sure your families, your friends, your nation feels just as proud for each one of you. Some believe that the world changes with the wisdom of the old.
I think that the idealism, innovation, energy, and can-do attitude of the youth is even more powerful. That is my hope for India too. 800 million youth joining hands to transform our nation, to put the light of hope in every eye and the joy of belief in every heart, lift people out of poverty, put clean water and sanitation within the reach of all, make healthcare available to all, a roof over every head. I know it is possible because I feel a new sense of purpose, energy and will in India. Because India's youth can see that you are joining hands with them, because I believe that we can speak with one voice for one future. That is why I'm here, because believe in you. Believe in you. Let me end with a few lines in Sanskrit. In the Indian spiritual world, and particularly the ancient language Sanskrit, what they say, in Sanskrit they say, Sarve bhavantu sukhinah, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani paschyantu, ma kaschit dukbhag bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti. The meaning of this Sanskrit scripture is, may all be prosperous and happy. May all be free from illness. May all see what is spirituality uplifting. May no one suffer. Om, peace, peace, peace. Thank you once again for having me. तीसरा ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल सेंट्रल पार्क में ये आयोजन अभी भी चल रहा है। हजारों की संख्या में यूथ मौजूद है, युवा मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। यहीं पर नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले अपना भाषण दिया है। और जो बात अमेरिकियों के लिए कही जाती है कि उनको हर चीज स्टाइल में पसंद आती है, वो किसी भी अपने हीरो को फिल्म स्टार या पॉप स्टार की तरह देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो। तो नरेंद्र मोदी ने उसी मंच का उन्हीं के तरीके से फायदा उठाया और अपनी हिंदुस्तान की कल्चर को, हिंदुस्तान की शैली को यहां के लोगों को समझाने की कोशिश की। खासकर वो हिंदुस्तानी युवा जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, आजादी के बाद के लोग हैं, जो हिंदुस्तान नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों के बीच खड़ा होकर नरेंद्र मोदी ने हाइजीन की बात की, टॉयलेट्स की बात की, जो एक तरीके से साफ दिखाता है कि नरेंद्र मोदी अपनी छाप, अपना असर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर डालना चाहते हैं और यूथ के बीच सीधे उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तभी उन्होंने हिंदुस्तान के 800 मिलियन यूथ की बात यहां न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के इस मंच पर कही है। अब नरेंद्र मोदी की इस बात का कितना असर यहां के युवाओं पे होगा, ये युवा कितना नरेंद्र मोदी के और मुरीद होंगे, इस पर भी हम सब की नजर होनी चाहिए। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर लोगों को संबोधित करेंगे, जहां बताया जा रहा है कि करीब 30,000 लोग प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। पीएम के मिशन अमेरिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब, और जो कि इंडियन डिफेंस रिव्यू एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन के संपादक भी हैं। साथ ही चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव डोगरा, जो कि पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर रह चुके हैं।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे हम जरूर बात करेंगे कि आज का क्या कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन राजीव, पहले आप पर आना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे अभी भी हैंगओवर बाकी है। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल पार्क और यूएन की जनरल असेंबली में संबोधित किया लोगों को, उस स्पीच को लेकर, उनके शब्दों को लेकर। पाकिस्तान में मैं भारत का आखिरी कौंसिल जनरल था। डिप्टी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में होता है, मैं कराची में था, पर वो अलग बात है। मेरे को लगता है कि मोदी जी की सेंट्रल पार्क की स्पीच सबसे अहम होगी न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान, और मेरे शायद पूरे यूएस की यात्रा के दौरान भी काफ़ी अहम होगी। वो इसलिए कि क्या आप सोच सकते हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे वो सेंट्रल पार्क के आसपास भी जाते जब 60,000 लोग होते। दूसरी चीज़, पिछली बार इतिहास में कब था कि इंडिया ने लोगों को और लोगों को हृदय को इस तरह झंझोरा था जिस तरह आज मोदी जी, जो वैसे तो एक एक घंटे के भाषण देते हैं, 4-5 मिनट के अपने स्पीच में हर दूसरे सेकंड वो कनेक्ट कर रहे थे यूथ से, और हर दूसरे सेकंड वो ऐसी बात कर रहे थे जो यूथ को भाए और यूथ को अच्छी लगे। लास्ट टाइम ऐसा जब हुआ था, मेरे को याद आ रहा है 1971 में, बांग्लादेश लड़ाई से पहले, जब रविशंकर और शायद जॉर्ज हैरिसन ने इकट्ठा एक कॉन्सर्ट किया था बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और तब जाके भारत का नाम और भारत का जो मुद्दा था वो सारे वेस्ट के यूथ में समा गया था, चाहे निक्सन उस टाइम भारत के बहुत अगेंस्ट थे। तो मोदी का सेंट्रल पार्क में जाना और सेंट्रल पार्क में यूथ से कनेक्ट करना, तो जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है अमेजिंग, और शायद हिंदी में उसका अनुवाद होगा अद्भुत। और साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि डेयरिंग। आफ्टर ऑल मोदी जी इंग्लिश में इतने फेमिलियर नहीं है जितनी उनकी हिंदी में मास्टरी है, और फिर भी सिंपल और अट्रैक्टिव इंग्लिश सेंटेंसेस बोल बोल के वो बार बार उनको अप्लॉज मिल रहा था। तो मेरे को ये लगता है कि सेंट्रल पार्क वाला मैसेज काफी देर तक प्रभावित करेगा लोगों को। बिल्कुल, बिलीव इन यू, ऐसी बातें कहकर अगर आज आप काम करें तो अपने कल को सुधार सकते हैं, ऐसी कई बातें उन्होंने सीधे बोली जो कि सीधे सीधे यूथ से कनेक्ट करती हैं। मेजर जनरल बख्शी, अगर हम यहाँ पे सेंट्रल पार्क की स्पीच पर ही देखें, जाहिर तौर पे बहुत अनयूजुअल था कि आप कुर्ता पजामा पहने, जैकेट पहने, एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ पे पॉप सिंगर हैं, युवा वहाँ पे पहले ही मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आप कुछ सीरियस बातें करते हैं, बात करते हैं कल के भविष्य की, और युवाओं को समझाने की कोशिश करते हैं और उनका दिल भी जीत कर आ जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर हैं और उनको एक बहुत अच्छा सेंस है ऑफ हिज ऑडियंस कि किस ऑडियंस पर अपनी स्पीच किस तरह से पिच करनी। और आपने देखा कि कल वो एक विश्व स्तर के स्टेज पे बोल रहे थे यूएन जनरल असेंबली में। उनका पूरा लहजा अलग था, उनकी पूरी बातचीत का जो कंटेंट था वो अलग था। उन्होंने उसको यूनिवर्सल इश्यूज, ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कंसर्न्स के ऊपर पिच किया था और बिल्कुल ही अपने ऑडियंस को एप्रोप्रिएट मैसेज दिया था। बिल्कुल, मेजर जनरल बख्शी, यूएन की स्पीच पर हम जरूर आएंगे विस्तार से, लेकिन अगर यहाँ पर हम राजीव के कमेंट्स की बात करें तो आप भी सहमत है कि काफी अनयूजुअल था सेंट्रल पार्क में जाकर? तो वही मैं कह रहा था कि आज उनका जो शैली थी वो बिल्कुल अलग थी, वो डायरेक्टेड थी टुवर्ड्स द यूथ, और इसका पूरा एक कार्निवाल जैसा फेस्टिवल इसका एक माहौल था, और उसमें जाकर उन्होंने अंग्रेजी में बातचीत की है क्योंकि ज्यादातर वहां के जो यूथ है वो हिंदी इतनी अच्छी तरह नहीं जानते। तो उनके हृदयों को छूने के लिए उन्होंने जो है अंग्रेजी में बातचीत की, सीधी सादी अंग्रेजी के अंदर ऐसे मर्मस्पर्शी उन्होंने वाक्यों का प्रयोग किया कि हर
कुछ मिनटों चंद मिनटों के बाद आपने देखा किस तरह तालियों की गूंज से उनका खैर मकदम किया गया, वो जो कह रहे थे उसका स्वागत किया गया और वो लोगों को छू गया वहां पे, वो कनेक्ट कर पाए हैं वहां के यूथ से। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। कल का ऑडियंस अलग था, आज का बिल्कुल अलग ऑडियंस है। बिल्कुल, और ये वर्सेटैलिटी हम देख सकते हैं जब सेंट्रल पार्क में नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और जब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में भाषण देते हैं, और किस तरह से अलग अलग ऑडियंस को एड्रेस करके उनके अलग अलग रंग, लेकिन सबसे ही जुड़ने की कोशिश उनकी हमेशा कामयाब रहती है। और वाकई में बिल्कुल अद्भुत और अनूठा था जिस तरह से एक पॉप कंसर्ट के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अमेरिका में मौजूद युवाओं से बातचीत की, उनको संबोधित किया। सेंट्रल पार्क में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को वहां मौजूद लोग किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे ने। And I've never seen this kind of a response for an Indian Prime Minister. Are you surprised that an Indian Prime Minister is here on the Central Park stage here? I'm surprised that he came all the way here, but he's wonderful. I've heard him on the news before. He's a really good speaker and very inspiring. But do you think that it's possible for alignment of interest between an Indian Prime Minister and the American audiences? Absolutely. First of all, I want to say that the Prime Minister is absolutely charming, and Om Shanti 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 to all of you. I think that there is an alignment here. I think that he's made a commitment that is unprecedented. He is popular here, and there's not very many prime ministers that end their speech with, "May the force be with you." This is a man who cuts across many different cultures. You heard Mr. Modi speak here. What did you make out of the statements that he was making here? Well, Mr. Modi has a particular energy about him, and I think he's got great intention and great clarity. But my favorite part was when he said, "May the force be with you." Was he a politician for you, or was he a yogi for you as he was introduced before he came on the stage?